Good morning, student. In this class, children, we are going to start with the next program of the from the sheet, that is question number 5. So just first go through the problem, children. It is also the problem based upon the coordinate system, as I already told you. So just to go through the problem. The problem says that on a plane any point can be represented with x and y known as the coordinate of the point. Define a class point which can represent coordinates of the point and can perform following operation. Mean the first part is the same as the previous one. After that, the formula to calculate the distance between two points is given, and then the format of the class is also given, that the name of the class is point, two data members are there, x and y, and then these are the method. The first method is point, which is a constructor to assign 0 to x and y, then void read data to take the input of both the x's x and y, and then there is a method double distance point, which returns the distance between any two point on the plane. So it is also same as the previous program. Okay, in the previous program, children, we had the same method. And now see that what the two other jobs we are told to do. The next method is void centroid point comma point comma point. Okay, children. So you know na that in the previous program we were told to calculate the midpoint, and here in this program we are told to calculate the centroid, and 3 points are passed. Okay, and then void area point comma point to find the area of a triangle formed with the current object and the आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट. तो यानी एक ट्रायंगल बन रहा है 3 पॉइंट से, और आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. ठीक है, और आप 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं. तो आपको पता है कि अगर आपको ए बी और बी सी और ए सी तीनों साइड की अगर मेज़रमेंट मिल जाए तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला से आराम से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. फार्मूला इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में अपेयर हुआ तो आपको उसका फार्मूला भी मिल जाएगा. ठीक है, और फिर लास्ट मेथड है विच प्रिंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एंड नाउ लुक एट द last part of the question. What is told? Write a program to input any 3 points on a plane which can form a triangle, and to find the centroid of the triangle and the area of the triangle. Okay, children. So these are the things which we are told. Okay, so now look at the first part of the program. It is same as the same as the previous program. The name of the class is given as point. Two data members are there, x and y. ठीक है, the first method is given as point. Okay, which initializes both the data members as 0. Why? Because it is a constructor and it is told in the program that point is a constructor which assigns 0 to x and y. Next method is void read data, which takes the entries of x and y, and then the next method is distance, which accepts one point and calculates the distance between the current object and B and returns the result. Okay, children. Here in this program it returns the distance between 2 points. Okay, to the calling method. Okay, now we move to the next part of the program. Okay, so now children, see the methods are given: void centroid point A comma point B, and then the next method is void area to calculate the area of the triangle formed with the help of these 3 points. And then here we are printing the result, and we directly move to the main part. As I told you that the most important part is the main part here. Okay, so now see that. So first of all, children, you know that we have to form the 3 points on a plane. Okay, so suppose I form one figure here. It is our y-axis and x-axis, and then पॉइंट ए इक्वल टू न्यू पॉइंट. ठीक है, आपने एक पहला पॉइंट बना लिया यहाँ पे ए के नाम से. ठीक है, ये मेरा ए नाम से पॉइंट हो गया. देन बी पॉइंट बी इक्वल टू न्यू पॉइंट, एक आपने पॉइंट यहाँ पे बना लिया बी के नाम से. इसके पास भी अपने दो डेटा मेंबर होंगे, एक्स और वाई. ठीक है, ये बी हो गया आपका. और फिर पॉइंट सी इक्वल टू न्यू पॉइंट, आपने एक और तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म किया,
सी के नाम से ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये सी के पास अपना एक्स और वाई होगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा हमने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म कर लिए, ए बी और सी, ठीक है। फिर अगली चीज़ क्या लिखी मैंने, ए डॉट रीड डेटा, बी डॉट रीड डेटा और सी डॉट रीड डेटा, ठीक है। यानी कि आप ए बी और सी इन तीनों के यहाँ पे वैल्यूज़ की एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो सपोज जैसे मैं यहाँ कुछ वैल्यू इनपुट कर लेता हूँ, ठीक है, 10 एंड 50, यहाँ पे जो है 10 एंड 10, 30 एंड 20, ठीक है। तो ऐसे सपोज बेटा आपने इन तीनों ऑब्जेक्ट के ए बी और सी तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और तीनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों के एक्स और वाई की एंट्री कर दी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चौथा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बनाया गया है, कौन सा, पॉइंट सेन, देयर इज नो ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन एंड यू नो दैट यू हैव टू इंक्लूड दैट ब्लैंक स्पेस हियर, ओके। सो पॉइंट सेन इक्वल टू न्यू पॉइंट, मैंने यहाँ पे बेटा एक और ऑब्जेक्ट बनाया है सेन के नाम से, ठीक है ना। ये क्यों बनाया है, सेन, टू कैलकुलेट द सेंट्रॉयड, ठीक है। तो सेंट्रॉयड के पास भी अपना एक्स और वाई होगा। तो यानी ऐसे मैंने यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अब चलिए अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमसे बोली गई है टू कैलकुलेट द सेंट्रॉयड एंड प्रिंट दैट। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सेन डॉट सेंट्रॉयड। बेटा ये जो आपका ये जो चौथा ऑब्जेक्ट था सेन, क्योंकि देखिए जो सेंट्रॉयड वाला जो मेथड दिया गया है प्रोग्राम में, उसकी खास बात क्या है कि दैट इट टेक्स थ्री आर्गूमेंट एज आर्गूमेंट, सॉरी इट टेक्स थ्री ऑब्जेक्ट्स एज आर्गूमेंट, ठीक है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यानी कि तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, इस मिड ये सेंट्रॉयड वाले ऑब्जेक्ट में पास कर देना है, ठीक है। और प्रॉब्लम में क्या बोला गया था हमसे कि टू फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट, और जो आएगा रिजल्ट वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे करंट ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई में आ जाएगा। तो आइए इसको जरा करके देखते हैं। आपने लिखा है यहाँ पे सेन डॉट सेंट्रॉयड ए बी सी, यानी कि बेटा ये जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेन क्या बन जाएगा, मेरा करंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए बी और सी ये तीनों जो हैं ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ, सेन की बॉडी के अंदर मूव कर जाएंगे। और ये जो मेथड है आपका सेंट्रॉयड, ये कहाँ इस समय एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सेन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अंदर आके जरा चेक करिए क्या लिखा मैंने, ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स प्लस सी डॉट एक्स डिवाइडेड बाई 3, यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट के एक्स ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। तो चेक करिए जरा, 10 प्लस 10 20 और प्लस 30, ठीक है ना। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 50, और 50 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको पता है कि आंसर आपका 16 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एज आपने इनको इंटीजर फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। और ये बेटा ये जो 16 है ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्स में। अब यहाँ देखिए सोचने की बात, केवल समझने की बात यहाँ पे यही है पूरे प्रोग्राम में कि ये एक्स कहाँ का होगा। तो आपको अच्छे से मैंने बताया है कि इस एक्स के नाम के आगे किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। बाकी देखिए तीनों एक्स के पहले ए डॉट लिखा है, बी डॉट लिखा है, सी डॉट लिखा है, पर इस ये जो चौथा एक्स है इसके नाम के पहले कुछ नहीं लिखा है। तो यानी ये कहाँ का होगा, आपके करंट ऑब्जेक्ट का, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको अच्छे से पता है कि ये हमने ये जो सेंट्रॉयड वाला मेथड सेन वाले ऑब्जेक्ट से कॉल किया है। तो यानी ये जो आंसर आएगा 16, ये एक्स में करंट ऑब्जेक्ट के एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने y कैलकुलेट किया, तीनों का y ऐड किया, तो यानी कि 50 प्लस 10 60 और 20, तो यानी आपका कितना हो गया, ये 80 हो गया, ठीक है। और 80 को भी जब आप जो है क्या करोगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 80 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है। फिर से यहाँ पे आपका जो आंसर है 26 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 26 पॉइंट आपके ड्रॉप हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 26, और यही 26 आपका y में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो y है वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यानी आपके सेंट्रॉयड का जो x और y है वो कितना आएगा, 16 एंड 26। और फिर इसके बाद मेन में आ जाइए, जब आपका ये फंक्शन ओवर हो जाएगा, कंट्रोल फिर से कहाँ आ जाएगा, मेन में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेंट्रॉयड इज, और आपका ये जो सेन वाला ऑब्जेक्ट है इससे आप अपने
डिस्प्ले पॉइंट वाले फंक्शन को कॉल कर लीजिए और ये क्या करेगा, एक्स और वाई दोनों सेंड के प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जो आपका जो आ जाएगा लिख के यहाँ पे क्या कि सेंट्रॉयड इज, ठीक है, एक्स कितना आ जाएगा आपका 16 और वाई आ जाएगा आपका 26। तो ऐसे बेटा आपके सेंट्रॉयड की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद आया सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब, ठीक है, जो थोड़ा सा लॉजिकल भी है और ट्रिकी भी है। ठीक है, इसमें क्या बोला इन्होंने कि अब आपको ये जो तीनों पॉइंट से ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये देखिए पहला पॉइंट क्या है ए, ठीक है, सेकंड पॉइंट है बी, तो ये ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट से ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। ठीक है, अब आप अच्छे समझ रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया तभी निकल पाएगा जब आप ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ऐसे ही बी और सी के बीच का भी जो है ये भी कैलकुलेट कर लें डिस्टेंस, और ए और सी के बीच का भी कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना, तो अगर आपको ये तीनों अगर यहाँ पे ये मेजरमेंट मिल जाएं तो अब आप क्या कर सकते हो, इनको ऐड करके इनका मीडियन निकाल लोगे और फिर आपको जो है फार्मूला याद होगा, जो हेरॉन्स फार्मूला क्या दिया गया था हम लोगों को कि जो है एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। ठीक है, और इसका पूरा स्क्वायर रूट, और एस की वैल्यू क्या दी जाती है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है तीनों साइड के मेजरमेंट हैं ए बी सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हमको इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बेटा देखिए, ट्रायंगल का एरिया जब आपको निकालना है तो आपको पता है सबसे पहले तो मुझे ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं जैसे ए और बी, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं एक्चुअली, इनके बीच का मुझे डिस्टेंस मेज़र करना होगा। और आपको याद है ना कि जो पिछली वाली जो अभी भी जो पिछले वाले शीट में हम लोगों ने यहाँ देखा था कि इसमें एक ये यहाँ पे दिया हुआ है मेथड, डबल डिस्टेंस पॉइंट बी क्या करता है बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है और करंट ऑब्जेक्ट और ये जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करके हमको उसका जो रिजल्ट है ये रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे चलेगा एरिया वाला। ठीक है, तो एरिया वाले मेथड में जब आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पॉइंट बी और पॉइंट सी केवल दो ऑब्जेक्ट पास किए गए हैं। अब सवाल यह है कि जो ट्रायंगल बनता है वो तो तीन ऑब्जेक्ट से बनता है, पर यहाँ तो केवल दो ही ऑब्जेक्ट पास किए गए हैं, तो तीसरा ऑब्जेक्ट कौन होगा आपका, करंट ऑब्जेक्ट होगा, याद है ना। तो ये काम हमने कैसे किया, अब जरा मेन की लास्ट लाइन चेक करिए। हमने यहाँ पे क्या बोला, ए डॉट एरिया बी कॉमा सी, यानी कि देखिए मैंने अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, करंट ऑब्जेक्ट बना लिया, और सेकंड यानी बी वाला ऑब्जेक्ट, और थर्ड यानी कि सी वाला जो पॉइंट था, इन दोनों को मैंने एज ए आर्गूमेंट पहले ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया। तो ए मेरा बन गया करंट ऑब्जेक्ट और बी एंड सी क्या हो जाएंगे, मेरे आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए ए डॉट एरिया यानी ए मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कि ये जो पूरा मेथड है मेरा एरिया वाला, ये कहाँ एग्जीक्यूट होगा, ए की बॉडी में। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब ए है, ए के पास अपना एक्स और वाई है, और बी और सी भी अपना अपना लेके आ गए हैं। जो बी लेके आया है कितना लेके आया है 10, ये इसका एक्स और वाई होगा, और सी लेके आया है 30 एंड 20। ठीक है, ये जो है सी का एक्स और सी का वाई होगा। और अब मुझे सबसे पहला काम तो ये करना है कि मुझको ए बी और सी इन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना होगा। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत समझने वाला पार्ट है। सबसे पहले बेटा मैं ए और बी ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र करने जा रहा हूँ। ठीक है, और जो आंसर आएगा मैं इसको कैपिटल ए में स्टोर कर लूँगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो तो क्या है, स्मॉल ए है, लेकिन मैं इन दोनों पॉइंट ए और बी वाले ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैपिटल ए में स्टोर करूँगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, डबल कैपिटल ए, ठीक है, इक्वल टू, और अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करूँगा। कैसे, मैंने कहा दिस डॉट डिस्टेंस बी। ठीक है, दिस कौन है बेटा, करंट ऑब्जेक्ट, यानी ए से मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया, डिस्टेंस वाला, और उसमें मैंने बी को पास कर दिया। तो अब आप समझ रहे हो ना, ये जो आपका था मेथड,
ये जो मेथड था ये आपका यहाँ पे कॉल होगा, ए होगा करंट ऑब्जेक्ट और बी पास होके आ जाएगा, और ये क्या करेगा, ए के एक्स और बी के एक्स और ए के वाई और बी के वाई दोनों को कैलकुलेट करके मेजरमेंट निकाल के जो भी आंसर आएगा डी में, यानी ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको ये रिटर्न कर देगा, और जो भी आंसर आएगा आपका होके रिटर्न वो आपका यहाँ कैपिटल ए में आके स्टोर हो जाएगा। ऐसी बेटा फिर मुझे बी और सी, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट के नाम है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैंने क्या लिखा, बी डॉट डिस्टेंस सी, ठीक है। यानी कि मैंने बेटा आपकी बार अपने बी वाले ऑब्जेक्ट को, ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट था इसको मैंने बनाया करंट ऑब्जेक्ट और सी को इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो अब की बार जो याला जो चलेगा मेथड आपका डिस्टेंस वाला, इसमें बी जो है आपका करंट ऑब्जेक्ट होगा और जो सी आपने पास किया है, सी कहाँ के स्टोर होगा, बी के अंदर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए जो सी की कॉपी कहाँ बनेगी, बी के अंदर, और अब ये क्या करेगा, बी और सी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करके डी के थ्रू वापस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका नाम बी है, लेकिन मैंने बोला कि करंट अपने डेटा मेंबर का आगे कोई नाम नहीं यूज करता, लेकिन ये जो सी पास होके आया है वो यहाँ पे बी के नाम से स्टोर होगा। आप चाहे तो यहाँ कुछ और नाम रख सकते हैं, कोई थर्ड नाम रख लीजिए, ठीक है। बी रखने से यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्यों हो रहा है कन्फ्यूज़न, क्योंकि जो बी से ही आपने फंक्शन कॉल किया और जो सी पास हो के आया वो भी बी के नाम से। तो थोड़ा समझ देखिए, जिनको समझ में आ रहा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये क्या हो गया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ बी हटा दो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, सपोज़ कोई एक थर्ड नेम यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है ना। जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे इसका नाम रख लिया, आर रख लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आर्गुमेंट आएगा वो आर के नाम से आएगा। तो अब आप यहाँ पे आपने लिखा है बी डॉट एक्स, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर डॉट एक्स, आर डॉट वाई, ठीक है। तो अब आप चाहे यहाँ पे ए पास करो, चाहे बी पास करो, चाहे सी पास करो, सब वो आर के नाम से आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं आप। तो ऐसे बेटा हमको बी और सी के बीच का भी मेज़रमेंट मिल गया, जो कि बी कैपिटल बी में क्या स्टोर होगा, और अब मुझे ए और सी के बीच का चाहिए, ठीक है। तो ए कौन है, तो अब आपको पता है कि ये जो एरिया वाला फंक्शन तो ए के ही अंदर चल रहा है, ठीक है। आपने कहा था ए डॉट एरिया, तो ए मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, तो आपने क्या बोला, दिस डॉट डिस्टेंस सी, ठीक है। यानी आपने करंट ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस वाला फंक्शन कॉल किया और सी को पास कर दिया। तो अब आपको पता है ना कि अब ये जो सी भी जो पास होके जाएगा वो आर में स्टोर होगा, और ये क्या करेगा, ए और सी दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करके रिटर्न डी हमें ये वापस कर देगा, और हम क्या करेंगे कि जो भी आंसर आएगा इसको कैपिटल सी में स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे बेटा मुझको यहाँ पे क्या हुआ, ए बी और सी, ठीक है, ये तीनों मुझको यहाँ पे साइड्स मिल गई, साइड्स के मेजरमेंट मिल गए। इसके बाद बस अब कुछ नहीं करना है आपको, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, डबल एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आपने तीनों साइड का मीडियन निकाल लिया, फिर फॉर्मूला पता ही है आपको, एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी का स्क्वायर रूट कर लिया, और आपका जो है यहाँ पे ए आर नाम में एरिया आ गया, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए आर, और आपने अपने ट्रायंगल का एरिया प्रिंट कर दिया, और बस इसके बाद मेन में लौट के आएंगे, मेन आपका ओवर हो जाएगा, और ऐसे आपका बेटा ये प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा टफ था, लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप क्या करेंगे, फिर से पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला था उसको पहले एक बार ध्यान से देखिए, और फिर से दोबारा इस वीडियो पे आइए, ठीक है ना, क्योंकि यही दो सबसे मेन प्रोग्राम है बेटा। अगर आपको ये दोनों प्रोग्राम क्लियर हो गए तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये टॉपिक करीब जो है 70% आपने समझ लिया, ठीक है। तो चलिए फिर अगली बार मिलते हैं और अगली प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं शीट की। थैंक यू बेटा।